Good morning. Before people gather, people who come in time early, they should get some extra benefit, always. Because they always benefit. Because हम जब right चीज़ right time पे करते हैं ना, so obviously हमें benefit मिलता ही है. और इस time पे तो it's damn important. Because what are we going to teach our little one before the little one comes and joins us? We are going to teach what are the values today which have missed out, which we as parents are missing out. चाहते तो हम सभी हैं ना कि we want perfect बेबी बने. किसको perfect बेबी चाहिए? सबको चाहिए. और उस perfect की definition हम decide कैसे करते हैं? यही हमने सीखना है. This is what we want to learn. कि एक perfect बेबी बनाने के लिए एक perfect पेरेंट चाहिए. एंड परफेक्ट पेरेंट बनाने के लिए परफेक्ट मन चाहिए. ठीक है ना? हम उसी की जर्नी पे शुरू किए हैं. इतने सारे वी every second how many babies are being born? Any idea? Every second how many babies are being born in this world? How many women are delivering in a year? 135 million women in 1 year deliver babies. Every second, 5 to 6 babies come into this beautiful world. And I'm saying this beautiful world. We have to make this world beautiful by their presence. That is what we are aiming at. And we are just about 6-7. चलो बहुत ज़्यादा करेंगे. आज संडे के दिन सैटरडे नाइट एंजॉय नहीं किया, बाहर जाना था, पार्टी पे नहीं गए. एक लेट नाइट करनी होती है. एक ही तो दिन मिलता है सैटरडे नाइट बस. और ये वाला पे ये संडे हमारे नाम, हमारे बेबी के नाम. दिस ग्लिम्स ऑफ लिटिल मेडिटेशन आई विल जस्ट टेल यू, just go through it, just follow the voice and just be in complete calmness for these 4 minutes and experience, are we actually following this virtue of harmony? There is nothing new that we learn here, but the only thing is our mind, there is a language our mind carries, and the mind language is supported by images, colors and music. ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे मन के लिए. बिकॉज हमें बनाना क्या है? परफेक्ट मन, जैसे हमने बात करी. सो मन के लिए जो भी उसकी लैंग्वेज है, हमें उसको क्लियर करना है. एंड आवर सोल वांट्स वैरायटी. इफ आई हैव टू टॉक टू यू, आई कैन टॉक 1 hour also on the phone. But when I talk to my baby, because I can't see, because I have not visualized, I have not connected, and there is too much connection outside. There's too much connection. 20 years back, at least when I can go back to my own time, we were just working. We didn't have a phone also. There was nothing. Today this technology is beautiful, but we have to see how mindfully we are using the technology. So there is a lot of connection outside which we can't focus inside. So that is what we are here to learn. Okay? And we start today's session. Yamini will just give you a little brief on what I'm going to talk about. And we have Tarneen with us. She is also a senior dietitian from VLCC. She has a lot of experience. So she will be sharing her views, and then you can take it from there and benefit each and every moment of this Sunday morning, because Delhi mein Sunday morning collecting 9:30 is very difficult. Should I actually start? We know each other so well. We don't need introductions because we've been, we live most of the time in the hospital. आधा टाइम तो हमारा इंटरेक्शन का आप सबके साथ ही जाता है, एंड जाना भी चाहिए. बिकॉज मैं हमेशा जब डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भी मैं जाती हूँ, एंड आई ऑलवेज से दैट व्हाई डिड वी एवर बिकम अ डॉक्टर? इंटेंशन क्या था जब हम डॉक्टर बने थे? सी एटलीस्ट इंसेंटिव रिचनेस का तो था नहीं, बिकॉज देयर वर मेनी मोर थिंग्स व्हिच वी कुड हैव डन.
बिकॉज दैट इंसेंटिव, वो जो मैं कह रही हूँ ना, मन, उस मन को बहुत टिकाना पड़ता है। रीजन क्या था, बने क्यों, करना क्या था और कर क्या रहे हैं। सो अगर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट हम सब अपने अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस लेके चलेंगे ना, तो हर चीज परफेक्ट हो ही जानी है। So very important. So when I started this project, I never knew so much about birth psychology. मुझे कोई आइडिया नहीं था। रुचिका इज हियर, इससे पहले प्रेगनेंसी भी मैंने तुम्हारे साथ करी। आई नेवर एक्सप्लेन्ड यू, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मुझे खुद ही नॉलेज नहीं थी। चलो मेरे चाइल्ड चिल्ड्रन आर नाउ 18 and 15, वो तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, तब तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि ना हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया जब हम प्रेग्नेंट थे, ना हमारे टीचर्स ने बताया जब हम पढ़ रहे थे। एमडी करी, इतनी सीनियर रेजिडेंसी करी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 13 इयर्स निकल गए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करते हुए, बिल्कुल एविडेंस बेस्ड, जिसमें एक एक जगह हमारा ऑडिट होता था सब। उधर भी किसी ने नहीं बताया कि ये बर्थ साइकोलॉजी क्या है। कभी कभी व्हेन यू डाइव इनटू योर ओन सेल्फ, व्हेन योर चैनल ऑफ माइंड इज क्लियर, देन यू गेट थॉट्स which you actually want to pursue. जब ये माइंड में बहुत ट्रैफिक है ना, तो आता ही नहीं है, ना, जब बहुत रोड ब्लॉक्ड होती है तो जाने के लिए जा ही नहीं पाते उस एंड तक, धीरे धीरे चलते हैं। और जब क्लियर रोड मिलती है तो डेस्टिनेशन एकदम क्लियर दिखाई दे रही होती है। सो व्हेन आई एक्चुअली सैट डाउन, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, सोचा नहीं था, आई नेवर थॉट ये वॉच्यू बेबी बनाएंगे कुछ। आई डिडंट नो ऑल्सो, आई डिडंट प्लान ऑल्सो, आई डिडंट do any, there was no system as such. So many people joined me and went by isko banane mein, because this concept was very new. When I started reading, then I finally understood that there is a lot of science to this Garb Sanskar. We have locked Abhimanyu in a book. हमने उसको बंद कर दिया वहाँ पे। सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, स्टोरी सुननी सभी को अच्छी लगती है, जितने भी बड़े हो। आज भी अगर कोई कहानी सुनाने बैठ जाता है ना, इवन एज अडल्ट्स वी लव इट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग, इट इज गिविंग अस अ न्यू इनसाइट। सो उसके पीछे कोई साइंस है, जब ये पता लगा, देन आई थॉट वी नीड टू एक्चुअली वर्क एट इट, देन आई वाज वेरी क्लियर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ आवर चाइल्ड. Is there a psychology of a child? Are we doing some real great wiring in our baby's brain? Are we making those connections? क्या हम वो कर पा रहे हैं? ये बहुत बहुत important है to know that. If you all must have seen videos of conception. Have you seen or you haven't seen? How many of you have seen? 2. When you saw it, you've seen it together or alone? अलोन, इकट्ठे बैठ के कभी दोनों ने देखा, हाथ पकड़ के एक दूसरे का, कि देखो व्हाट हैव वी क्रिएटेड, दैट कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट आर वी डूइंग. दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव कॉल्ड यू हियर टुडे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिव ईच मोमेंट इन दैट अवेयरनेस, कि वो कॉन्शियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए. जैसे कोई आई वुड से कोई राजा होता है, उसका बेटा बेटी कैसे चलते हैं ना, राजकुमार राजकुमारी, वो डिविनिटी उनके चलने से पोर्ट्रे होती है. नाउ व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, आई मीन यू नो द प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग. नरेंद्र मोदी अमेरिका गया, इतने लोग आए हैं, क्यों, व्हाई? इट्स इंस्टिल्ड इन हिज कॉन्शियसनेस. ही वाज आल्सो टॉकिंग 1 year back when he was not the prime minister. So why, what we have to inculcate कि हमें भी, we are going to become a parent. वो consciousness इतनी clear आपके अंदर होनी चाहिए. जब आप walk करें तो होनी चाहिए, जब आप कुछ खाएं तो होनी चाहिए, जब आप बात करें तो होनी चाहिए. क्यों? Why? क्योंकि यही consciousness से आपके बच्चे की consciousness बन रही है. कौन नहीं चाहता कि मेरा बेबी एकदम बाहर निकले तो एकदम राजकुमार जैसा हो, उसका हर तरीका वैसा हो. Nobody likes a cranky child, है ना? Likes मतलब बच्चा तो हमारा ही है, प्यार तो हमें है ही उससे, बट हम चाहते हैं, and then we work at it. So वो working is, baby has been in your womb, it is swimming inside, it is listening inside, it is hearing inside.
So you become a parent from the day you conceive. Whenever we are given babies, you know, मेरे को हमेशा लगता है कि now when I give babies, जब हम आप लोगों को देते हैं, you feel it's, you know, like a clean slate which has come into your lap to take care. But it has such beautiful experiences which are marked on its personality when we give it to you. That is the importance of this session. That is the importance of creating that awareness. कि why do we need to have a virtue baby today? आज क्यों जरूरत है? पहले नहीं थी, पहले अपने आप बन जाते थे. पहले सारे virtues, you know, as in man has risen, technology has taken us up, but mankind has fallen. There is a lot of difference. Values have gone down. We can see it every day. And हम अपने बच्चे के लिए secure world एक imagine कर रहे हैं ना? तो what is the secure world? The secure world is your womb. If you understand how this is, you know, just moving 1, 2, 3, those steps, if you see yourself, कर लेंगे, मुश्किल नहीं है. अगर मैं आपसे अभी पूछूं, let me just start the talk with that. When do you think learning begins? अगर आप वर्चू बेबी की क्लास में नहीं आए होते, अगर आप प्रीनेटल पेरेंटिंग की क्लास में नहीं आए होते, तो आप क्या कहते? When does learning begin? Learning begins with the first breath we take. And when does learning end? Last breath we take. It's so simple. But वो बीच के 9 months हम live ही नहीं कर रहे हैं. ये time of learning, science today has proved it. We are very thankful to people outside who have invested so much of time, so much of energy, so much of money, and the best neurosciences centers, they have come up with this beautiful research. Those labs have proved things to us today. So now at least we can take it, use it. हम उन्हें use करके अपने इस 9 months में we can become actually, you know, we can understand that we have to take care of this pregnancy. We have to love our pregnancy. We have to respect this pregnancy, this beautiful phase of life, and so do the best for our baby and the safest possible experience for our own self. So when we move, there are too many things in this 9 months which you go through. There's a lot of love which you feel. There is a lot of anxiety which you feel. And it's not just you. When I say you, आपका मतलब है कि आपका mind, आपकी body, आपकी spirit, ये सब चीज यूज हो रही है. ये आपका तीनों का एक सिंक चल रहा है ना, जिसके अंदर हम इस पूरी न्यू लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं. बिकॉज बच्चे का भी तो बॉडी भी क्रिएट हो रही है, माइंड भी क्रिएट हो रहा है, सब कुछ क्रिएट हो रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर चॉइसेस. हर चीज जो हम कर रहे हैं, तो वो अवेयरनेस अगर क्लियर है तो चॉइसेस अपने आप क्लियर होंगे. In 2 hours, we cannot change the attitudes which any parent has already developed or is already living their life with. But we can sensitize those gray cells. That gray cells, they will sensitize and we will come to know that what are we missing on. And then once that gray cell knows that you want to yearn for it, you will create it yourself. Nobody can create your thoughts but you yourself. But if you are aware of creating those thoughts, then you will beautifully do it. So that is the purpose of this 2-hour workshop. Next. How many of you, I would like to just ask you, how many of you when you first conceived, did you feel there was some inner connect? There was some inclination more to divinity, spirituality? ऐसा लगा कि मेरी आस्था इंक्रीज हुई, मुझे उस भगवान पे ज्यादा विश्वास हुआ. ऐसा फीलिंग आया किसी को? किस को आया? कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में लगा कि ये कैसे हुआ, क्या नेचर का मिरेकल है? किस को ये लगा? 1, 2. देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला. फर्स्ट प्रेगनेंसी. हाँ जी बताओ. गुड. I was waiting for this because whenever I talk, I find one person with this, and I will tell you the entire story behind it, dear. जिसका दिमाग में ट्रैफिक,
नहीं है, उसको वो फीलिंग आ जाएगी। इट्स सो सिंपल। ये करिश्मा है, ये डिवाइन एक मार्वल ऑफ नेचर है। ये इतना इम्पोर्टेंट है फील करना, बिकॉज जब हम ये फील कर रहे हैं मतलब वी आर कॉन्शियस। Yes, yes. This is very, very beautiful instances. Now we see when we talk to a group of just 10, 15, we get 2 people. So that science is so clear. We never thought, we never discussed it as doctors. मैंने तो नहीं किया था। 3 years back, मैंने तो नहीं किया था ये डिस्कस किसी से। मुझसे भी किसी ने नहीं किया था। पता ही नहीं था। जस्ट ये पता था फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, फंडल हाइट, ग्रोथ पैरामीटर्स, एस्टिमेटेड फीटल वेट, लाइकर आसपास ठीक है, बेबी मूव कर रहा है, उसकी मैं बहुत क्लियर थी। मूवमेंट देखते रहो, मूवमेंट देखते रहो, अच्छे से बताते थे। उससे आगे हाँ, स्ट्रेस नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। यू शुड बी वेरी रिलैक्स्ड। आगे क्या करना है, हो कैसे रिलैक्स, सोचा ही नहीं। मुझे हो जाएंगे, अब भाई अब सबकी थोड़ी ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं। हम तो सिर्फ मेडिकली अच्छे से बच्चे का ग्रोथ का ख्याल कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्शियसनेस विच वी बीन ऑल लिविंग विद, एंड इट्स नॉट रॉन्ग, बट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग मोर, वी हैव टू डू समथिंग मोर। सो इट वाज सो क्लियर। शी सेड फर्स्ट में आया था, सेकंड में तो ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं थी। हो जाता है ये। एवरीबडी हैज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ प्रेगनेंसी। Every pregnancy is very unique. Every child which you are rearing up is very unique. So every time which you are giving to your child is also unique. Because आपका मन उस एक बेबी के मन और बॉडी दोनों पे असर कर रहा है। So one mind is controlling 2 bodies and another mind. इतना क्लियर होना चाहिए हमें कि मेरा मन मेरी बॉडी को ठीक कर रहा है और मेरा मन मेरे बच्चे के मन और बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा है। कितनी बड़ी शिफ्ट है। इतना ही याद रह जाए तो कहानी बदल जाएगी सारी। और कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या होता है उसके अंदर, ये इंटरनल वायरिंग जो है ये हमें साइंस बता रही है। सो दैट इज व्हाई वी बिकम मोर, वी एज मेडिकल डॉक्टर्स, when we understand these facts, we can tell it to you with conviction, and it is our conviction which makes you change. Because आप भी गूगल पे देखते होंगे, गूगल पे तो सब कुछ ही दिखता है आजकल। कभी कभी इतना दिख जाता है कि कॉन्शियसनेस ही चेंज हो जाती है, उसमें भी गड़बड़ है। बिकॉज दे विल टेल यू फैक्ट्स, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर वो नॉलेज नहीं बनती है ना। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड देन विजडम, ये 3 हमारे protocols of working. Like today we are going to talk on diet also. So when we talk of diet, what are we thinking? Ki we will know what we have to eat, how should we eat, what we should avoid, how much weight we should gain. Extra हो जाता है तो उसको prevent करने के लिए क्या करें, हमारे को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए हमें क्या करना है, फीडिंग के लिए क्या डाइट चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं, पर हम एक और एस्पेक्ट तो भूल ही गए। ये तो खाना मिल गया जिससे बॉडी बन जाएगी, मन का खाना, इमोशनल डाइट, वो भी तो डाइट है। मन को भी तो खाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बॉडी ग्रो करना है वैसे ही our mind has to grow, and it has to grow to the maximum, because this is the time that when you as a parent are going to make the mind of your baby. ये मॉडल भूलना नहीं है, तो हम डाइट दोनों की बात करेंगे। सो इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द फीटल साइकोलॉजी एज वेल एज आई विल टेल यू अबाउट द इमोशनल डाइट, एंड देन वील हैंड इट ओवर टू द फिजिकल डाइट। बिकॉज मन का खाना सब ठीक ठाक हो जाए ना, तो फिर बॉडी के खाने में आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लियर हो जाएगा क्या लेना है क्या नहीं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, एनर्जी सेव हो जाएगी। क्या कहते थे बड़े हमारे हमेशा ना, अगर मन से नहीं खाया ना तो खाया हुआ खाना भी नहीं लगता। दवाई के लिए क्या कहते हैं, अगर दवाई को भी ऐसे खाया ना कि खा लो यार ठीक है, तो दवाई लगती है,
कई बार आप नहीं कहते हो कि पता नहीं डॉक्टर के पास जाते ही ठीक हो जाते हैं, दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों होता है ऐसा? कोई तो रीजन होगा ना, उसका भी तो कोई साइंटिफिक बेसिस हो सकता है ना, कि हम डॉक्टर के पास बिना दवाई खाए जाके ठीक हो जाते हैं। फिर उसी डॉक्टर के पास जाके बिना दवाई खाए ठीक होते हैं जो जिसकी अपनी हीलिंग पावर क्लियर है, क्योंकि वो अपनी पावर से हमारे एक ये फिजिकल बॉडी, एक हमारे अंदर इमोशनल बॉडी भी उतनी है। तो जब हमारी अपनी माइंड की स्थिति स्टेबल होगी, अगर मैं किसी दिन जल्दी में होती हूँ, आपको देखती हूँ, कैन यू नो दैट? यू नो समटाइम्स जो मेरे पास बहुत आते हैं, अगर मैं बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ, फीलिंग आ जाती है, पर मैं कोई मिस तो नहीं करती चीज, पेपर पे सब लिखती हूँ, बताती भी सब कुछ हूँ, बात भी करती हूँ, शायद टाइम भी उतना ही देती होंगी जितना पहले देती हूँ, बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाती, ऐसा फील होता है ना? हुआ था, होता ही है, बिकॉज मेरा माइंड उस टाइम, you know, these are small little steps which we have to keep checking. और इस giving birth to a new life is very sacred. तो वो तो हमें डिवोशन की तरह ही चलना है, प्रमोशन में नहीं आना। जितने सारे रेजोल्यूशंस करने हैं ना, सबसे कागज पे लिख लो, मैं सबको कहती हूँ 9 महीने बाद बात करेंगे, अभी मेरा काम बहुत बड़ा है, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अभी नहीं मैं लड़ सकती, अभी नहीं मैं अननेसेसरी थॉट क्रिएट कर सकती, तो लिख लो, छोड़ना नहीं, कोई बात नहीं, बट उसको अभी नहीं लाएंगे। तो हमेशा वो डिवोशनल माइंड चलना चाहिए। और कैसे डिवोशन हमें लगेगी, कैसे लगेगी? डिवाइन से कनेक्ट होंगे तभी तो आएगी डिवोशन। वैसे भी इस इमोशनल माइंड के लिए, जिसको मैं कहती हूँ हमेशा, जो हमारी इमोशनल डाइट है, ये हमें कहाँ से मिलने वाली है? इमोशनल डाइट कुछ भी, प्यार, शक्ति, शांति, खुशी, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ना, ये कहाँ से मिलेंगे हमें? बाकी तो वैसे ही इसको ढूंढ रहे हैं। So why not connect ourselves with our own conscience, with the supreme conscience, and take these values daily, take it. बच्चा भी जब तक मुंह में अपने आप उसको कुछ देते भी हो, जब तक वो यहाँ से सख्त नहीं करता ना, उसके अंदर नहीं जाता, वो मुंह में रख सकता है जब तक वो अपने ग्लॉटिस को यूज नहीं करेगा। तो हमें भी जब तक हम लेंगे नहीं, हमें किससे लेना है? जिसके पास फुल ऑन है वो उसी से तो लेना है। इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं, और किसको मेडिटेशन कहते हैं? और मेडिटेशन में क्या करना होता है? जो हमारा अपना आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम डिवोशन से करें, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये सारे वर्च्यूज हम उससे लेते रहें, तभी तो हमारा ब्रेन पे जो लैंग्वेज का इफेक्ट आना है, इसको हम कहते हैं वर्ड्स एंड इमोशन। एंड वर्ड्स, they are what is going to create, you know, that good vocabulary, words with good emotion. वर्ड्स जो इमोशनल होते हैं वो हमारे बच्चे की वोकैबुलरी है, वो हमारे बच्चे के थॉट्स, उसके एटीट्यूड्स को बना रहा है, एंड वही हमारे को ऑल थ्रू वही उसकी लाइफ और डेस्टिनी बना रहा है अल्टीमेटली। सो दैट इज व्हाई लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट। सेकेंड इनर कनेक्ट, हाँ, इनर कनेक्ट कह सकते हैं। हमारे मदर का थॉट प्रोसेस, जो इनर कनेक्ट की बात करें कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, तो यहाँ हमारी इमोशनल डाइट काम आती है, जिसके लिए मेरे को ऐसा लगा कि कैसे थॉट प्रोसेस को मदर के हम चैनलाइज करें। सो दैट इज व्हाई व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस प्रोजेक्ट, आई सेड आई शुड गिव देम अ, यू नो, काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ अ फील, कि आप रोज एक कमेंट्री सुनो, एक ही सुनो 4 बार, कितना टाइम लगता है? 3 मिनट ईयरफोन में लगा के सुनोगे आराम से, कोई कनेक्शन किसी और से नहीं होगा। सो माय म्यूजिक जो है वो वैसे भी इट्स, यू नो, दिस इज बायोलॉजी ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक जो है वो हमारे बेबी के बहुत सारे जो कनेक्शन जिसकी मैं बात कर रही थी ना आपको, साइनेप्टिक कनेक्शन, उनको खोलता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस म्यूजिक। सो दैट इज व्हाई हमारा इनर कनेक्ट, मदर का थॉट प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट।
हमारा लैंग्वेज हो गया, मदर का थॉट प्रोसेस हो गया। दूसरा जो हमारे मदर के हॉर्मोन्स जो सिक्रेट हो रहे हैं, हमारे मैटरनल सर्कुलेशन में जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कैसे आएंगे? जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा वही हमारे हॉर्मोन्स होंगे, क्योंकि अगर हमारा इजी थॉट प्रोसेस चल रहा है, हमारे वर्ड्स और इमोशंस वैसे भी इन कंट्रोल रहेंगे। लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे थे ऑब्वियसली वो भी अननेसेसरी नहीं होगी, वर्ड्स हम जो बोलेंगे वो भी गुड वोकैबुलरी के होंगे। हॉर्मोन्स हमारे पास मेलाटोनिन आएगा, हमारे पास सेरोटोनिन आएगा, हमारे पास पेन रिलीविंग वाले भी आएंगे, हमारे पास गुड स्लीप इंड्यूसिंग भी आएंगे, गाबा पेंटेन, ये सारे हमारे गुड हॉर्मोन्स हैं जो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। एंड मेडिटेशन ये नहीं कि एक कोने में आंख बंद करके सिर्फ बैठना, आप अपने बच्चे से कनेक्टेड हो गए, गुड थॉट्स, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। बट हमें थोड़ा सा इनर मूव करना है इस टाइम पे। व्हेन आई से दिस आई डोंट से कि आप हमें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करना। When I say move a little inward, just dive into your own consciousness once. वो जरूरी है। एंड उसके लिए टाइम करो, सुबह 5 मिनट, रात को 5 मिनट, मुझे ये करना ही है। तीसरा हमारा डाइट, जो मतलब फिर हमारा डाइट जो हमारा खाना है, फूड, जिसके बारे में अभी our dietitian will also tell. So if we are connected with all these parameters, ये नॉलेज हमें है जिससे हम अपने माइंड को चैनलाइज कर सकते हैं टू हैव अ गुड थॉट प्रोसेस। ऑब्वियसली हमारा बेबी एक हेल्दी और हैप्पी बेबी, वो हमारी क्रिएशन में मदद करेगा, क्योंकि बच्चे की भी लर्निंग होती है, बच्चे की भी मेमोरी होती है, और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। उन्होंने स्टडी करी एक नॉर्थ कैरोलिना में, दे मेड अ चाइल्ड रिमेम्बराइज अ स्टोरी, मतलब लास्ट 10 वीक्स में उन्होंने रोज स्टोरी पढ़ी, दिन में 3-4 बार, अ कैट इन द हैट स्टोरी। दिस वाज डॉक्टर स्यूअर्स थ्योरी। एंड उन्होंने देखा कि जब बेबी बाहर निकला तो उन्होंने नर्सरी में सकिंग रिफ्लेक्स देखा। सो हम भी तो कर सकते हैं, मतलब बच्चे को याद हुआ ना, उसकी मेमोरी में इम्प्रिंट हुआ, तो हम भी तो मेमोराइज करा सकते हैं उसे इतना कुछ। मैं तो सबको कहती हूँ गुड नाइट गुड मॉर्निंग कहना तो सिखा दो, उसको बता दो रोज सुबह उठ के भी सोने का टाइम है कि उठने का टाइम है। अगर वो याद रख सकता है तो ये भी तो याद रख सकता है, जिसके ऊपर ऑल द टाइम हमारी मुश्किल होती है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम आपकी लेबर पे बात करेंगे, हाउ डू यू क्रिएट योर ओन लेबर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेबर। बिकॉज मेरे पास तो इतना कुछ है सुनाने को कि आप शाम तक भी बैठे रहोगे तो मेरे पास खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने 2.5 साल इतना कुछ देखा और सुना है, और उसको साइंटिफिकली एक्सप्लोर किया है, फिर पर्सनली एक्सप्लोर किया है। बट इन सब चीज़ों में एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी तो हमें आ गई कि हाउ मच इम्पोर्टेंस डज दिस थॉट प्रोसेस कैरी। एंड आई विल ऑल्सो मेक यू डू अ मेडिटेशन, बट मुझे लगता है एक बार डाइटिशियन भी हमारी बता देगी ना कुछ, मतलब लेटर ऑल्सो कम विद दैट माइंडसेट, तो फिर हम आपको उस मेडिटेटिव माइंड से लास्ट के 10 मिनट लेके देन वी कैन मेक यू, मतलब आई कैन एटलीस्ट गिव यू सम फील, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। आपकी लैंग्वेज, आपके हॉर्मोन्स, आपका थॉट प्रोसेस, ये सब, आपका इमोशनल डाइट, ये सब इसी से ही चेंज होगा, और ये सब चेंज होने से बेबी का वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, और उसको चेंज होने से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, और यही तो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना? Hello, now you can hear better. Okay, so the first thing that comes to our mind when we become pregnant is food. सबसे पहली चीज़ जो हमारी बदलेगी वो बदलेगा हमारा खाना पीना, ठीक है ना? अब इस खाने पीने में हमारे साथ कितनी सारी चीज़ें, हमारी अवेलेबिलिटी कितना वास्ट है कि हम उसको बेसिकली, अगर हम किसी डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो हाउ डू दे डिस्क्राइब विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। आई डोंट नो आप कितने फैमिलियर हो इस ग्रुप से कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, प्रोटीन्स में क्या क्या चीज़ें आती है, बट आई एम श्योर एज अ ले पर्सन काफ़ी कुछ आप सबको अवेयरनेस होगी कि इस ग्रुप में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है ना? द बेसिक थिंग इज कि व्हाट वी आर इज बिकॉज ऑफ आवर फूड।
सो द फूड, सो द माइंड। हम जैसा खाना खाते हैं, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी वैसे ही बनती है। अंडर नरिश्ड रहोगे, डेफिनेटली डेफिशिएंसीज आती हैं। अगर डेफिशिएंसीज नहीं भी आती हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी टोटलिटी को इफेक्ट करता है। टोटलिटी एज इन फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन्स। हम जो भी खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट। अब जब वो बेबी है, वो हमारी ही बॉडी का पार्ट है एंड द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो जो भी हम खाएंगे उसका एक सिंसियर पार्ट हमारी बेबी को ही लगेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर मैं सभी एज ग्रुप के लोग देख रही हूँ, नॉट जस्ट मदर, बट आई गेस आई कैन सी सम ग्रैंड मदर्स ऑल्सो। सो आई रियली वुड अप्रिशिएट दैट वी ऑल क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पर मदर्स को एक हेल्दी डाइट मिले। टू बिगिन विद द हेल्दी डाइट, एक छोटा सा क्वेश्चन है टू ऑल ऑफ यू। How much % of the earth is water? 70%? Correct. हमारी बॉडी कितने % वाटर है? 70 to 80% is water? हमारा खाना कितना % वाटर होता है? to 20%। हम इसी अर्थ से बने हैं ना। We are a small part of this big universe. That is why the earth is 70% water. Our body is 70% water. Then why is not our food also 70% water? By water, I don't mean just plain water. But yes, हमारी eyes जो visualize करती हैं, वो फूड को विजुअलाइज करती हैं। फूड को देख करके हमें टेम्पटेशन होती है। द मोमेंट वी सी अ बैनर KFC, वी गेट टेम्प्टेड। द मोमेंट वी सी एन एडवर्टाइजमेंट विद फ्रेंच फ्राइज और समथिंग, वी गेट टेम्प्टेड। सो हमारी आईज जो विजुअलाइज करती हैं, हम वही खाते हैं। हमारी विजुअलाइजेशन को कौन इफेक्ट करता है? हमारी अपनी इमोशंस। तो जब हम खाने की बात सोचते हैं तो हमें सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइट में इट्स अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ फूड, फ्लूइड्स, वाटर, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत कुछ होता है जिसके बारे में हमें फोकस करना होता है। बट मोस्ट ऑफन व्हाट वी चेंज इज आवर फूड। वी लीस्ट थिंक अबाउट द वाटर इनटेक। जबकि इवन इफ यू सी, जो हमारा वेट प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ता है, उसमें बेबी का वेट कितना होता है? इट्स हार्डली 2 to 3 kgs। रेस्ट इज ऑल द वाटर वेट। हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, हमारा फीटल वेट होता है, फीटल एमनियोटिक वाटर्स होते हैं, इट्स दैट वाटर, है ना। सो व्हेन आई नाउ बी टेलिंग अबाउट द फूड, इट विल बी ऑल्सो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लूइड्स। अल्टीमेटली इट इज द ब्लड। जो हम खाना खाएंगे उसको हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का है ना। हम जो खाना खाएंगे वो इंटेस्टाइन्स में जाकर के ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको पहुंचाएगा। सो ब्लड इज व्हाट? इट्स अ वाटर बेस्ड, है ना। तो जो हम खाना खाते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड के थ्रू होता है। सो अगेन दैट मीन्स फ्लूइड इंटेक हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइंटिफिकली देखो तो हमारी जितनी भी डाइट्स होती हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमारे अंदर एक बेबी भी है, उसको भी फीड करना है, तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। बट लेट्स से कितना ज़्यादा? ऑफकोर्स बड़े लोग भी घर में यही कहते हैं कि बेटे अब खाने का ध्यान रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा खाओ, थोड़ा ज़्यादा खाओ।
लेकिन कितना ज़्यादा? हमारी बॉडी का जो जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे खर्च पे डिपेंडेंट होती है कि हमारी बॉडी कितना खर्च कर रही है। खर्चा एज एन ये नहीं कि हम कितना काम कर रहे हैं। जब हम खर्चा की बात बोलते हैं तो उसका मतलब है कि हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारा लंग, हमारा हार्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी काम कर रहे हैं। इन सबको अपने काम के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमारा हार्ट पंप करता है, दिमाग सोचता है, हम बोलते हैं। अगर लेट्स से आप ज़्यादा काम नहीं भी करते हो, मोस्ट वर्क इज बीइंग डन बाय सर्वेंट्स, बट इवन देन बॉडी के अपने खर्चे भी तो होते हैं ना। सो दैट इज द बेस लाइन एक्सपेंडिचर, वो हमारी बॉडी का बेसिक खर्च है। उसके अलावा जो हम काम करते हैं वो हमारी थोड़ी सी और एक्टिविटीज हो गई। एक यूजुअल प्रेग्नेंट women from the age group of let's say between 20 to 30 will have a medium height, 5 to 5 feet 4 inches. The usual BMR will be between 1300 to 1500, 1600 maximum, depending upon the weight also. आपका आइडियल वेट पर हो, ओवर वेट हो, अंडर वेट हो, सो रेंज बिटवीन 1300 टू 1500 कैलोरीज की रहती है। तो अब जो हम खाना खाएंगे अगर वो इसी रेंज का होता है तो हम अपनी नीड्स को मीट कर रहे हैं। नाउ दैट वी हैव अ बेबी विद इन एंड वी हैव टू फीड आवरसेल्व्स आल्सो एंड द बेबी आल्सो, जो नरिशमेंट हम लेंगे वो हमारे बेबी को पहुंचेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली इसी बेस लाइन के ऊपर आप अप्रॉक्सीमेटली 300 कैलोरीज और खाना खाना चाहिए हमें। दैट मीन्स अगर हम 1500 कैलोरी से खाना खा रहे हैं तो हमें उसको रफली इंक्रीज करके 1800 कर लेना चाहिए। बट व्हाट हैपेंस इज, ओके नाउ दैट आई एम प्रेग्नेंट, आई थिंक आई नीड वन मोर सर्विंग, है ना। कुछ भी अच्छा खाना देखते हैं, अब तो मैं ज्यादा खाना खा सकती हूँ because my needs are more. It becomes an excuse for us also to eat more. ऐसा होता है? कौन मेरे साथ एग्री कर रहा है? थोड़ी सी इनसेंसिबल ईटिंग भी हो जाती है। बट एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हैं। इट्स अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट only just 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा हमको खानी हो चाहिए इस टाइम पर ड्यूरिंग दी 9 months. Now these requirements will fall in the group of proteins. Proteins कौन कौन से फूड्स होते हैं, कोई मुझे बताएगा? सॉरी, पल्सेस, दालें और जी एग्स, मिल्क, सोयाबीन, anything else you can think of which is protein based? Sorry, meat, chicken. Okay, so that means all the protein sources we have listed down. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या ग्रुप्स फॉल करते हैं, कोई बताएगा? सीरियल्स, गेहूं, अनाज, मक्का, व्हाट एल्स? सॉरी, पोटैटोज। इंडियन किचन तो पोटैटोज के बिना कंप्लीट ही नहीं है। खैर, फॉल करता है चीनी, शुगर्स, सॉरी, यस, ऑल स्वीट शुगर्स। नेक्स्ट ग्रुप इज फैट्स। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उसके घर में भी अगर कुछ बड़े बुजुर्ग हैं तो फैट्स के नाम पे सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? देसी घी और बटर, क्रीम। नाउ दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि प्रोटीन्स दे हेल्प इन दी बॉडी बिल्डिंग, दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स, बेबी की ग्रोथ के लिए काम आता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। और फैट्स हमारे बेसिकली
स्टोर्स होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज जो रिजर्व में बॉडी रखती है हमेशा. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, I don't know how many of you are vegetarians and how many of you are non-vegetarians. Non-vegetarian groups, can you please raise your hand so that I just am able to, okay. Very few. Most of you are vegetarians. अब अक्सर क्या होता है during this time people think कि vegetarians के लिए protein sources इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो जाता है because non-veg being a major source of protein, lean meat, chicken, fish, eggs, ये बात सही है कि दे आर अ गुड बायोलॉजिकल सोर्सेज प्रोटीन के इन्हीं से आते हैं, बट देन वेजिटेरियन डाइट कैन ऑल्सो बी वेरी रिच इन प्रोटीन्स प्रोवाइडेड किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं हो. कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है? एनीबडी विद लैक्टोज इंटॉलरेंस? ना, चलो बोलिए. लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है? बेसिकली आपको जो मिल्क हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है प्रोटीन्स का प्लस कैल्शियम, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सो दे हैव टू ऑप्ट फॉर सोया प्रोडक्ट्स. बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन द पर्सन इज आल्सो हैविंग थायराइड, बिकॉज थायराइड में अगेन सोया इज लिटिल हार्मफुल. नाउ अब अगर हम सोचें कि हमें एक वेजिटेरियन डाइट रिच इन प्रोटीन करनी है, तो ऑप्टिमली हमें अपना कितना प्रोटीन खाना चाहिए पर डे? एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट इज अराउंड 60 ग्राम्स. प्रेगनेंसी में वो बढ़ करके 75 ग्राम्स हो जाती है. सो प्रोटीन्स के लिए अगर आप सोचो तो वेजिटेरियंस के लिए भी सोयाबीन इज अ वेरी गुड सोर्स. मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, इवन योर रोटी कैन बी फोर्टिफाइड. आप घर में प्लेन रोटी की बजाय उसमें आप सोयाबीन का आटा ऐड कर दो, बेसन का चिल्ला बना लो, पनीर का स्टफ रोटी खाओ. सो अल्टीमेटली विद एवरी डे व्हेन यू आर फोर्टिफाइंग योर रोटी, योर साइड डिशेस, मशरूम्स, आई एम श्योर मशरूम्स का अच्छा यूज होता है इन फॉर्म ऑफ सूप्स एज साइड डिशेस, सो दे कैन ऑल्सो बी वेरी नाइसली यूज्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. Dal is the standard food of our Indian diets. If you compare your Western counterparts, वहाँ पर there is a major use of breads with lean meat, chicken, fish, beef. But India में we have the standard diet of roti and dal, chawal and dal. Dal chawal is a standard food for Indian diets. इसमें दाल का जो basic use हो रहा है, that is a very good source of proteins. ऑल दाल्स, अब आप कंपेयर करो ये कौन सी दाल, सबसे माइंड में पहले क्वेश्चन आएगा ना ये कौन सी दाल बेस्ट है. ऑलमोस्ट ऑल पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, वेरिंग विद 10 to 15% ऑफ वेरिएशन. अरहर की दाल हो जाए, चाहे चने की दाल हो जाए, मसूर साबुत, ऑल दीज दाल्स आर रिच इन प्रोटीन. राजमा, लोबिया, देन यू सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स. इन फैक्ट आजकल सोया के बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए. आई एम श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ. द ओनली थिंग विच इज कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ इज कि व्हेन वी हैव पल्सेस, दाल्स, उसमें जो एडिशनल हम फैट्स यूज करते हैं उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यू आर नॉट फोर्टिफाइंग इट विद लोडेड विद सैचुरेटेड फैट्स एज इन देसी घी. प्योर घी इज अ गुड सोर्स फॉर एनर्जी, बट देन उसका जो कंजम्पशन है वो थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए. एनी वन ऑफ यू हु इज अवेयर ऑफ काइंड्स ऑफ फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं और सैचुरेटेड फैट्स ऐसा क्या करते हैं जो हम उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? बेसिकली सैचुरेटेड फैट जैसे देसी घी है उसका कंजम्पशन हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है बॉडी के लिए, बट द रेस्ट ऑफ इट विल गेट डिपॉजिटेड बिकॉज हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई नहीं है कि हम उस पूरे को बर्न कर पाएँ. सो द पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स एज एन एग्जाम्पल्स कोई देगा मुझे पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स के?
आपने कनोला ऑयल का नाम सुना है किसी ने? ऑलिव ऑयल का नाम सुना है? राइस ब्रेन ऑयल्स? व्हेन वी आर यूजिंग कुकिंग मीडियम्स, उसमें सिर्फ देसी घी का यूज़ नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ अदर फैट्स का यूज़ भी होना चाहिए. ऑयल्स लाइक कनोला ऑयल, दे आर वेरी वेरी हार्ट फ्रेंडली ऑयल्स. ये इतने लाइट होते हैं कि अपना फ्लेवर नहीं होता है इनका, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से बचाते हैं. आपके गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को प्रमोट करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम भी करते हैं. सो whatever food we are eating is going to get absorbed by the baby also. So let us provide the baby with all kinds of oils also. When we talk about carbohydrates, तो उसमें एनर्जी गिविंग फूड्स जैसे स्टेपल डाइट हमारी चावल है, दाल है, ब्रेड्स हैं, रोटी है, और कुछ मैगी, पास्ता, नूडल्स, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं. आपने सोचा है कभी कि जिस तरह से अभी हम अपने डेली रूटीन में ब्रेड का नाश्ता करते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ब्रेकफास्ट, कि जब ब्रेड नहीं हुआ करती थी तब हम नाश्ते में क्या खाया करते थे? करेक्ट. और कुछ परांठे, दलिया, पोहा, सूजी की बेस्ड चीजें, इडलीज. जहां तक हो सके ब्रेड्स अवॉइड करो, जहां तक हो सके. आई नो मोस्ट ऑफ यू माइट बी वर्किंग मदर्स. ब्राउन ब्रेड को मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं उसके फेवर में हूँ, बिकॉज अगेन ब्राउन ब्रेड के आप लेबल्स पढ़ोगे ना पीछे से, तो उसमें लिखा होगा साफ 80 to 85% मैदा. ब्रेड को हिंदी में क्या कहते हैं बाय द वे? डबल रोटी कहते हैं ना? क्यों कहते हैं? अगर आप इसकी कैलोरीज को काउंट करो तो ब्रेड का एक पीस ही तो है, लेकिन इट इज इक्वल टू 2 रोटीज. और जहां तक पेट भरने का सवाल है, तो इज इट फिलिंग? नहीं. 2 या 3 पीस खाए बगैर पेट नहीं भरता. और सोचो अगर यही आप 2 या 3 रोटी खाओगे तो क्या होगा? आप एक के बाद बस कर दोगे, है ना? जहां तक हो सके ब्रेड के नाश्ते को अवॉइड करो. दैट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. इट हैज टू बी द हेल्दीएस्ट मील ऑफ द डे. You are beginning your morning with a bread which is processed, cooked by an environment, in an environment with which you are not familiar also. We all must have heard rumors, bread का आटा था, even ब्रिटानिया के नाम पे भी मैंने सुना हुआ है, full of flies. ब्राउन ब्रेड की जहाँ तक आपने मुझे बताया, ब्राउन ब्रेड के बारे में एक और rumor आई थी, that you know what is sugar syrup, cooked caramel syrup, काफी गाढ़ा ब्राउन सिरप हो जाता है. It is mixed with the मैदा to give it the brown color. So white हो या brown हो, bread is bread. पोहा is a very good breakfast to begin with. Most of the pregnancy के टाइम पर क्या होता है, Indian women especially, they are deficient in iron. जितना भी मर्जी हम अपनी आयरन के सोर्सेज को अप करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं अप होता है अनलेस यू टेक अप आयरन के सब्स्टिट्यूट्स भी अगर हम लेते हैं तो उसका भी एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है. आई टेल यू द रीजंस व्हाई. नाउ पोहा इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन. कैन यू बिलीव इट? इट्स इवन बेटर देन पालक, जिसको बहुत लोग कहते हैं कि हाँ पालक खाओ आयरन बढ़ेगा, पालक खाओ आयरन बढ़ेगा. पोहा इज इवन बेटर देन दैट, बिकॉज उसका जो मिलिंग प्रोसेस होता है, चावल को जो मिल्स में कूटा जाता है, वो आयरन के सिलेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े रोलर्स होते हैं. सो दैट इम्पार्ट्स लॉट ऑफ
iron into it. So ultimately it becomes the best source of iron. And iron requirements इस time पर maximum होती हैं because not only your blood cells, it is used for the manufacture of your baby's RBCs. Hemoglobin उसी से बनेगा ना? That is why doctors always recommend iron capsules, iron syrups, heme up and things like that. And also they tell you about eating more of iron-rich foods. पोहा is the highest in iron. So आप अगर बेशक दिन में रोज एक कटोरी किसी भी समय पोहा की खा लो, always good. But then again, अगर खाली पोहा खाओगे, इतना आयरन में रिच है, तो भी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा. Because iron absorption happens only in the presence of vitamin C. So vitamin C यानी कि उस पर नींबू डाल के. So see how traditionally what our usual breakfast used to be. That means पोहा with नींबू. आपको foreign countries में ये नहीं मिलेगा. You go to Western countries, they will promote something, supplements or something like that, but they will not promote poha, which is the best source in iron. Okay? Another good Indian breakfast would be stuffed roti, like as you said, parantha. But कोशिश करो उस पर देसी घी की बजाय white butter लगा लो. We all know what is white butter, जो क्रीम से बनता है, because उसमें और व्हाइट बटर में और देसी घी में क्या फर्क होगा? एनीबडी कैन टेल मी? आपके घर में मलाई आती होगी, आप मलाई में से व्हाइट बटर निकालते हो, ठीक है? मार्केट में व्हाइट बटर मिलता है, लेट्स से अमूल बटर, सॉरी, करेक्ट. अगर मैं उसको येलो वाला बटर भी मान लूं जैसे अमूल का होता है, उसमें और देसी घी में क्या फर्क है? विटामिन ए. जब आप बटर से घी बनाते हो तो उसका जो विटामिन ए है वो इवेपोरेट कर जाता है. सो इट इज ऑलवेज यूजफुल कि आप अपनी रोटी के ऊपर अपने कुकिंग मीडियम्स में देसी घी के अलावा व्हाइट बटर का यूज ज्यादा करो. दैट विल एक्चुअली एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? आईज के लिए और स्किन. इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड स्किन. स्किन के लिए और क्या क्या अच्छा होता है? सॉरी, विटामिन ई. फूड्स बताएंगे कौन से अच्छे होते हैं स्किन के लिए? इफ यू एवर हर्ड, सी एज अ वुमेन ऑफ कोर्स वी ऑल नो यू मस्ट हैव गुड स्किन. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर हेल्थ. योर हेयर एंड स्किन रिफ्लेक्ट योर inner health. Do you all know this? So skin के लिए और क्या अच्छा हो सकता है? I'm breaking away from the topic, but let me just. एलोवेरा खाएंगे या पिएंगे? लगाने वाला या खाने वाला एलोवेरा? खाने वाला. जो हम स्किन पे लगाते हैं उसका मात्र शायद 1% ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. Main is when we eat and it shows on the skin. What else? You think juices are a good source of vitamins? I have seen a lot of people, you know, they promote fruit juices for their energy needs, especially when one is convalescing. चलो वो तो ठीक है because the person is not able to digest. उस टाइम पर हमारे को fruit juice की requirement होती है. Pregnancy के टाइम पे भी we promote intake of fruit juices. But ideally, I would suggest when nature made fruits, they were supposed to be eaten. But man, for our convenience, हमने उसका जूस निकाल के ले लिया और उसका जो अच्छे वाला फाइबर था उसको फेंक दिया. So try to have as much as fruits as a whole possible, then taking juice out of it. थोड़ा खर्चा बॉडी को भी करने दो ना, मिक्सी का काम बॉडी को करने दो, ठीक है? Unless your requirements are very very different, as in nausea है, morning sickness है,
some people are not able to digest foods. They are resistant to high fiber diet. In that cases, juices might be taken, but as far as a healthy person, you should always eat fruits and not drink fruits. ठीक है? आप फ्रूट्स के अपस्किन की जैसे हम बात करते हैं, उसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपकी आइज को अपील करते हैं, आपकी एपेटाइट को अपील करते हैं, जैसे बीटरूट. ऑल ब्राइट, गुड कलर्ड, dark colored, pigmented vegetables, they are going to be good for your skin. वो आइज को भी अपील करते हैं ना. आप एक रेड कलर की कैप्सिकम देखते हो, एकदम से माइंड में अपील हो जाता है. There is no concrete evidence on the as you are saying, there is no concrete evidence कि beetroot is going to be harmful. जैसे पपाया है, that is definitely there, but beetroot के लिए कोई concrete evidence नहीं है as a dietary part. You can use it safely. No. There is no concrete evidence on that. There are many myths regarding that. Amla is mother of vitamin C. So you can have it safely. You are asking about the any kind of a side effect or ill effect? Ma'am, amla is like a very rich source of vitamin C. Best. So maybe if you take 2-3 slices of vitamin C, आंवला, इंडियन गूसबेरी इसको बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए. हाँ जी, परफेक्ट, वेरी गुड टू स्टार्ट. यस. सी, प्रेग्नेंट वुमेन के थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग सिकनेस के, है ना. सो डेफिनेटली अगर मैं देखूँ तो हमारी जो अर्ज होती है खाने की, वो अर्ज क्यों होती है, जिसको हम कहते हैं, मेडिकली भी कहते हैं पीका, यानी कि किसी का मन करता है चौक खाने को, किसी का मन करता है कुछ डिफरेंट चीज़ें खाने को. तो एक वुमेन के अर्ज के हिसाब से यू कैन मॉडिफाई हर, उसको सुबह उठ के खाने को क्या मन करता है. एंड आंवला इज ए गुड वे टू स्टार्ट. आंवला या लाइम जूस, इट कैन बी मिक्सड विद अ टीस्पून ऑफ हनी, नॉट टू मच. टीस्पून इज गुड. हनी हम क्यों खाते हैं बेसिकली, बी कॉम्प्लेक्स है उसमें, हनी में बी कॉम्प्लेक्स होता है. And what we get from honey is same what we get from different fruits. Banana, 1 teaspoon. Yeah, 1 teaspoon is good. 1 teaspoon is good. Why we have to? Okay, but then as I told you, let's also take into consideration कि हमें कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है. 2 is not required. हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स को आप देखो ना, तो 1 टीस्पून इज मोर देन इनफ. जो हमारे को डे की रिक्वायरमेंट चाहिए वो 1 टीस्पून में मीट हो जाती है. रेस्ट इज एक्स्ट्रा. उसको यूज नहीं हुआ तो वो बॉडी में स्टोर हो जाएगी और इट विल गेट एक्सक्रीट ऑफ द बॉडी. वो बॉडी इसको वेस्ट समझ के फेंक देगी. So requirements आप देखो तो 1 teaspoon, that is about 5 milligrams, is 5 grams is more than enough. Like एक मैं आपसे एक आपके सामने एक पॉइंट फोर्थ पेश करती हूँ कि अगर हम देखें तो हमारे खाने पीने में बेबीज तो सभी प्रोड्यूस करते हैं, हम भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन हमारी ऐसी क्या शेड्यूल होती है और एनिमल्स का ऐसा क्या होता है, वो भी खाना खाते हैं, जहां मन करा जब उठाया खा लिया. What is so different with the human beings? It is the schedule. Animals का जब मन करेगा वो खा लेगा. हम अपने एक टाइमिंग्स लेके चलते हैं. हमारा एक अर्ली मॉर्निंग होता है, एक ब्रेकफास्ट होता है, एक मिड मॉर्निंग होता है, एक लंच टाइम होता है, एक इवनिंग टाइम होगा, एक डिनर होगा, है ना.
सो हम अपना जो भी खाना इस टाइम पे खाना कोशिश करते हैं, ट्राई टू हैव small meals more frequently than having one large meal. The major problem that pregnant women have is acidity. I'm sure यहाँ पर जितने मेरे साथ यहाँ बैठे हैं काउंटर पार्ट्स, उनको एक मेजर प्रॉब्लम आ रही होगी एसिडिटी की. अर्ली मॉर्निंग दे फील वेरी एसिडिक एंड दे वांट टू puke out. नहीं खाया जाता, इट बर्न्स इन द चेस्ट. Then we sort resort to so many medicine, syrups, Digines and things like that. To have acidity is normal, but there are ways and means by which इसको आप थोड़ा कम कर सकते हो. अगर आप अपने मील्स में लार्ज गैप्स रखोगे तो एसिडिटी बढ़ने की चांसेस लंबे हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं. छोटे गैप्स रखोगे और थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहोगे तो एसिडिटी की चांसेस कम हो जाते हैं. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आपके एंजाइम्स एकदम से फ्लश में आते हैं, डाइजेस्टिव एकदम से फ्लश में आता है डाइजेस्टिव जूसेस भी, सो दे क्रिएट एसिडिटी. अगर मैं आपको एक पैटर्न बताऊं कि खाने का पैटर्न क्या होना चाहिए फॉर आइडियल प्रेग्नेंट वुमेन, अगर हमारी नीड्स को आप मीट करना चाहो तो, if you are working, the schedule might vary a little bit, but ideally आपका क्या होना चाहिए? When you get up in the morning, the first thing should be, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, water. Not tea. Have a glass of water first. That's how you're going to meet your requirements. It's like having, जितने घंटे हम जागते हैं लगभग उतने ग्लास तो पानी के पियो. जितने घंटे हम जागते हैं अगर हम उतने ग्लासेस अगर अपने पानी के डिटरमिन कर लें कि हमें पीने हैं, दे नीड नॉट बी जस्ट प्लेन वाटर. Has anyone of you heard of infusion waters? Infusion waters. आप पानी में, water has the capacity to absorb nutrition and transport nutrition. आप पानी में जो फ्लेवर डालोगे पानी वो फ्लेवर उठा लेगा और अल्टीमेटली व्हेन यू ड्रिंक इट वो उसको अच्छे से रिक्वायर्ड जगह तक पहुंचा देता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट इन्फ्यूजन वाटर्स, तो ये वो वाटर्स होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाते हैं. आप एक पानी की बोतल में एक छोटा सा जिंजर का पीस क्रश करके डाल दो, उसमें थोड़ी सी मिंट की लीव्स क्रश करके डाल दो, आप उसमें कोई फ्रूट का एक स्लाइस कट करके डाल दो, आप उसमें कुकुम्बर के स्लाइसेस कट करके डाल दो. आप कुकुम्बर्स खाते हो, खीरा खाते हो, अक्सर उसके बाद बर्ब्स आते हैं, गैस बनता है. Anyone of you has felt that? खीरा खाने के बाद अक्सर बहुत गंदा फीलिंग आता है कई बार. बट अगर आप कुकुम्बर को खाने की बजाय उसके स्लाइसेस करके पानी में पियो वो वाला पानी, यू गेट द सेम बेनिफिट्स. इन्फ्यूजन वाटर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हैविंग वाटर ऑल्सो एंड द न्यूट्रिशन ऑल्सो. आप स्ट्रॉबेरीज ले लो, उसके स्लाइसेस काट लो, पानी की बोतल में डाल दो. कीवी ले लो, उसके स्लाइसेस पानी में डाल दो, हैव दैट वाटर. इट्स वेरी गुड टू इम्प्रूव डाइजेशन. अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें अक्सर एसिडिटी की शिकायत होती है, वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी. यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट आफ्टर हाफ एन आवर. इसमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है. वेदर इज प्लेजेंट, अबाउट 12 आवर्स. बिकॉज धूप में रखोगे तो डेफिनेटली स्पॉइलेज हो जाएगी कुकुम्बर्स की खासकर. सो ट्राई कीपिंग इट इन अ कूल प्लेस, इन अ वाटर बॉटल. फ्रिज में रखना है फ्रिज में रख दो, बाहर रखना है बाहर रख लो, बट हैव वाटर इन दिस फॉर्म. देन इन्फ्यूजन वाटर्स के बाद आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट अदर ड्रिंक्स दैट वी जनरली हैव.
टी, कॉफ़ी जिनमें कैफीन होता है, आइस टी, try to limit the use of it. Try to limit the use of teas because they all contain caffeine, which is not good for you and of course for your baby also. Alcohol is another no-no. हम सोचते हैं कि नहीं सोशलाइज कर रहे हैं, आज पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा ले लेंगे, बट डेफिनेटली इट हैज साइड इफेक्ट्स. जहाँ हमारे बच्चे को एक एक चीज़, एक एक मॉलिक्यूल हम जो खाना का खा रहे हैं वो उसको पहुँच रहा है, तो अगर हम अल्कोहल का थोड़ा सा पोर्शन भी लेते हैं वो बेबी तक पहुँचेगा ना. सो ट्राई टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल द यूज ऑफ. अगर मैं इसको ग्राम्स को कन्वर्ट करूँ तो द यूजुअल 2 cups आर मोर देन इनफ. उसके बियॉन्ड अगर आप वर्किंग हैं, यू हैव अ स्ट्रेसफुल लाइफ, go in for other stress busting drinks. Like as I told you, infusion waters are good, lime water, then your herbal teas. Herbal teas are very good. You can make use of buttermilk, छाछ, जहाँ तक हो सके घर का बना. Try to abstain from the outdoor products, processed foods as far as possible. It can be taken as long as they are avoid. Processed baked beans, no. Tinned fruits are okay once in a while, but then the calories they're loaded with that. Cheese are good, yes, because cheese में क्या है? Yes, there is a high salt in that. Salt again is a cause of water retention जो pregnant women को अक्सर हो जाती है. Infection chances नहीं है. They are safely produced. Otherwise, we will not be able to meet our protein needs. Sorry? Yes. Yeah, it's very high. First of all, the fat. कि what is the source of fat? आपने अक्सर यूज करते होगे मार्जरीन. बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है. लो कैलोरी बटर, नो कोलेस्ट्रॉल बटर, मार्जरीन ले लो, ब्रेड पे लगा लो, खुला खा लो. बट आपने देखा मार्जरीन पर फैट का सोर्स नहीं लिखा हुआ है. फ्रॉम वेयर द ऑयल इज कमिंग. आपके बटर पे तो लिखा हुआ है ना, अमूल बटर पे लिखा हुआ है इट इज कमिंग फ्रॉम दीज मैनी मिल्क सॉलिड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. बट आपके मार्जरीन पर लिखा होगा सिर्फ वेजिटेबल ऑयल्स. वो कौन से वेजिटेबल ऑयल्स हैं यू डोंट नो कि वो पाम ऑयल है या कोकोनट ऑयल है. सो स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग ऐसी चीज़ें जिस पर कि सोर्स नहीं मेंशन्ड हो. अदर कंटेंट्स ट्राई टू रीड दी अदर लेबल्स. उसमें कॉर्न है, कॉर्न इज गुड. अगर व्हीट फ्लावर लिखा है, मैदा, रिस्ट्रिक्ट द यूज. सोडियम है, रिस्ट्रिक्ट द यूज. क्वांटिटी कम कर लो, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट यूज मिनिमम क्वांटिटी. It becomes same thing, yes. Yes, you will not believe जो हम फ्रूट जैम्स खाते हैं घर में, किसान फ्रूट जैम, सबसे अच्छा पॉपुलर फ्लेवर कौन सा है? मिक्स फ्रूट जैम. एंड यू विल नॉट बिलीव मिक्स फ्रूट जैम में जो कलर यूज करते हैं, इट्स बैंड. It's banned completely in many countries, especially the US. If need be, again the quantity varies. हमने अगर केचप खाना है तो हमें थोड़ा सा ही चाहिए होता है, 1 teaspoon मैक्सिमम, 1 tablespoon, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता. So that way quantity wise, since it is being consumed in a very small quantity, so you can go ahead with that. But jams, I was like surprised. You must be aware of the soft drinks also, the Coca-Cola, the Campa Cola, the amount of caffeine they have, and the colors being used, the amount of phosphorus in that, हड्डियाँ गल जाती हैं उसके अंदर. So think of the end result happening to your tender baby. So soft drinks are something that really need to be taken care of, avoid as far as possible. All these, yes?
Mother Horlicks is fine. See again उसमें क्या है, उसमें कोकोआ डाला होगा, नहीं बॉर्नविटा में, है ना? So again these things are building up caffeine in the body. That is safe. It's adding to your protein content. Not necessarily. Protein shakes are not required. पता क्या होता है protein shakes के साथ? Most of them what happens is they suppress your appetites. They suppress the appetite for other foods. हम प्रोटीन्स को इतना एम्फेसाइज करते हैं कि हम बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम ओवरलुक कर जाते हैं. बनाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ B6. बनाना में इतने प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छी हैं, जो हमें फिल भी करती हैं और हमारी मेजर नीड्स को कवर अप भी करती हैं. If you ask me among the fruits, then banana is a very good fruit, good in calories, good in calcium, vitamin D, then carrots and kiwis, oranges, mosmis, mango. अब तो खैर सीजन नहीं है, but then they are the best you can say sources through which you can get your calcium and vitamin needs. Very good, very good. See, ultimately with banana shake you are feeding not yourself but for the good build up of the bones of your baby also. अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं तो ये दो तीन चीज़ें आपको मैं शेयर कर सकती हूँ. That whenever you have calcium, you also need vitamin D and magnesium along with that. Otherwise, calcium absorption is very poor. Same way as I talked about iron, iron vitamin C के बिना absorb नहीं होगा. ऐसे ही calcium जो है उसके लिए भी vitamin D का होना ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. हम जितनी क्वांटिटी खाते हैं ना, वो एक चम्मच के हिसाब से है, वो कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी में. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. प्रोसेस्ड फूड्स मत खाओ. नेचुरल फूड्स आप जितना खा सकते हो खाओ, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो चने हैं. क्यों मंगवाइए कैश की बॉटल्स, आपको बना के देना चाहिए था उनको सब कुछ. So this is the importance of knowledge. He said मैं वापस ले जाऊँ, आप जाके अभी सबके लिए नींबू पानी बनाओ. कितनी गलत बात है आपकी, आप बाजार से ये लेके आए हो उनके लिए. This is what knowledge does. This will change the consciousness. So when we are changing this consciousness, now if it can change, so now तो it is going to do wonders. Because ये इतनी सारी knowledge जो हमें 45 minutes में मिली है, ऐसा नहीं. वही ना. That is why even I could not follow it, because we follow this when we have a limited thing to talk, and we are talking about creating a new life. We are talking about a generation to come who is going to change this world. So we can't talk on 10 slides, 20 slides, 30 slides, because when we touch with our own experience, it changes the wiring in your brain. Your hormones are going to be secreted. From your maternal circulation, they cross over to your baby's circulation. And there are Vera centers form. This is going to happen. Whatever facts today which she told, टूटे तो पड़े थे अब हमारे दिमाग में कहीं, पर किसी ने जोड़ के उनको हमें सामने रख दिया, तो वो हमारे लिए यूजेबल हो जाएंगे. हम उन्हें यूज करेंगे, एंड अभी नहीं, इवन लेटर ऑन विल यूज. इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर देंगे. जस्ट आप इमेजिन करिए, आपका बेबी अभी हुआ और उसको डॉक्टर ने कहा 6 months बाद आप खाना खिलाएंगे. जब 6 महीने बाद उसको आपने वीनिंग शुरू करनी होगी,
आप में से कितने हैं जो सोचेंगे, एंड अभी तो मॉम एंड मी मदर केयर में बड़े ब्यूटीफुल बेबी प्रोडक्ट्स हैं, बेबी फूड्स भी हैं, कितनों के माइंड में आएगा हम जाके वो अच्छा फूड फ्लेवर लेके आते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए? देखो किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि जो आप बनाएंगे, जो आप कर सकते हैं, वो दुकान में बैठ के नहीं कर सकता। सेम खाना खाने से पहले खाना बनाना किसने है आजकल बहुत कॉमन चीज है। हमने कभी खाया ही नहीं था और किसी के हाथ का खाना। माई मदर वॉज अ डॉक्टर, शी इज नो मोर विद मी, बट देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेड। शी यूज्ड टू गो टू अ क्लिनिक, हमारा सुबह नाश्ता बनाते थे, फिर हमारा खाना एक छोटी सी जो हमारी किचन होती थी उसमें खाना रख दिया जाता था बना के कि स्कूल से आओगे आप खा लेना। शी यूज्ड टू कम बाय 4:30, तो हमें पता ही नहीं था कि और भी कोई खाना बना के खिलाता है। तो इसीलिए आज हम सब इमोशनली स्ट्रांग हैं। इतना कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारी इमोशनल पावर है हमें, क्योंकि उन्होंने हर रोटी के साथ अपना प्यार डाल के हमें खिला के बड़ा किया है। आई एम मेबी नॉट डूइंग इट दैट मच, बट आई वॉन्ट टू डू मोर। तभी मैं क्लिनिक नहीं करती इवनिंग को, मेरे पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं शाम को क्यों नहीं मिलती हूँ, इसीलिए नहीं मिलती हूँ। तो वही इमोशनल पावर आप सबको भी अपने बच्चों में अब से डालनी है। तो जब खाना बनाए कोई भी अच्छा सॉन्ग चला ले। शुरू में भी जो आए थे मैंने कुछ कुछ अच्छे सॉन्ग्स चलाए थे, बिकॉज वो मुझे बहुत पावर देते हैं, ताकि वो जब आप खाना खाएं तो आपके मन को भी स्ट्रॉन्ग करे, बिकॉज योर स्ट्रेंथ्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड। दिस इज अ टाइम जहां पे बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी ने गो थ्रू करने हैं, आपके माइंड ने गो थ्रू करने हैं 9 months में। और ये आगे आने वाला टाइम भी बहुत डिमांडिंग टाइम है आपका, क्योंकि उस बच्चे के लिए यू आर द वर्ल्ड नाउ, यू आर द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट ईयर, बट इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू यू आउट ऑफ यू। तो वो कैसे होगा? सिर्फ ज्ञान सुनते रहेंगे तो थोड़ी होगा। ज्ञान के साथ खाना भी उतना ही चाहिए प्यार से बना हुआ। तो आपके पास तो देखो मदर्स, मदर इन लॉज इतने प्यार से बनाने के लिए रेडी बैठे हैं, बनाने के लिए सारा दिन पूछते हैं कि सब कुछ रखो, कुछ खाओ तो सही तुम। और अगर कहीं नहीं भी है कोई, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में भी बहुत है, आप दोनों हैं एक दूसरे के लिए, तो बनाने के लिए टेक आउट टाइम। इवन द फादर्स कैन डू इट, क्योंकि जो आप लोग अपने और अपने बच्चे के लिए खुद बना के लेंगे इन 9 months के लिए तो कीजिए, बाकी आना आगे पीछे चलेगा। और खाने से पहले जस्ट फॉर अबाउट 15-20 seconds जस्ट टॉक टू योर बेबी, कैरी योर बेबी विथ यू सुबह से रात तक। सुबह उठे तो बोलो गुड मॉर्निंग, वॉशरूम गए तो बोलो चलो ब्रश करते हैं चल के, नीचे किचन में आए तो बोलो आज क्या खाओगे बताओ। ये कॉन्शियसनेस है, तभी चेंज आएगा। सिर्फ 2 घंटे में कुछ सुनने से नहीं आएगा, उससे सेंसिटाइजेशन होगी। और आपका जब थॉट वैसा चलेगा, आपका एक्शन वैसा होगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा, उससे पर्सनालिटी चेंज होगी। और होती है। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी 3 साल पहले, मैंने ऐसा डोंट थिंक आई एम अ ग्रेट मदर, मैंने बहुत कुछ ऐसा कर रखा है। बिलीव मी, आई वॉज द मोस्ट in my most stressful phase of life when I conceived. There was nothing sorted out because my mother was too sick, I was doing my PG, there were loads of duties on my head, but this knowledge I did not have at least. Maybe it could have been a little better. So we see those little traits, in our children, those little virtues or little sanskar which they are carrying with them even till date. Maybe both care and fear together. तो ये चीजें हमें दिखती हैं। सो यू डू दिस। सो खाना क्या खाना है आपको बताया, और कैसे खाना है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, जब भोग लगाते हैं, गुरुद्वारे में हम जाते हैं, खाना खाते हैं, वहां क्या खाना खाते हैं? कुछ फर्क होता है वहां के खाने में? हजारों लोग खा के जाते हैं वहां से, खा के अच्छा लगता है। अपने घर को भी वैसे ही बना लो 9 months के लिए। कोई आए तो उसको लगे, क्योंकि काम इतना बड़ा कर रहे हो ना। गॉड creates life and he has made you the person to create life. कितना बड़ा काम है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली है, और यही 9 months के लिए डाली है। उसके बाद तो फिर
जाती रहेगी, ऑल थ्रू आप गाइड हैं, बट ये 9 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन ले होती है, कहते हैं ना घर की नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, वो ठीक है ना तो फिर ठीक रहता है, घर लंबा चलता है। जब घर चल सकता है लंबा, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो वो बेबी का इमोशनल फाउंडेशन अगर आप ले करेंगे तो कैसा चलेगा वो सारा टाइम, वो तो सारे लोगों को इतना कुछ देगा पूरी लाइफ में। सो दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो बनाना किसने है, बनाने के बाद खाना, खाने से पहले 30-30 सेकंड, कितना दिन में 1.5 मिनट, हर पानी का ग्लास पी के कहना प्यास बुझी ना तुम्हारी, ऐसे ऐसे करने, तभी तो याद रहेगा। कुछ और बड़ी चीजें वी डोंट हैव टू डू। अभी भी इफ वी सी नो हमारी कॉन्शियसनेस में हाउ डू वी चेंज, बिग थिंग्स वी टैकल, कोई बड़ी बात हो जाएगी ना, हाँ हाँ नहीं नहीं प्रेगनेंसी है, अभी नहीं नहीं अभी नहीं टेंशन करनी, वैसे किसी ने जाते जाते कुछ बोल दिया, बस मूड ऑफ हो गया। बड़ी चीज हुई थी तो हो गई थी, छोटी जो 10 में 10 हुई थी उन पे मूड ऑफ हो गया, तो मूड तो ऑफ हो गया ना, कौन सा हार्मोन सिक्रेट हुआ फिर। और ये भी नहीं सोचना कि अभी तो हमने कितना ही कुछ सिक्रेट कर गया, पता नहीं कितनी वायरिंग हो गई, अब क्या करें, ये ना, ये नहीं सोचना। बिकॉज बच्चे के लिए 9 months this and the next 18 months, they are very very important, because whichever connections have been made, you can use them or lose them, either use it or lose it, it is up to you. तो जो नहीं बने हैं वो आपकी अब थॉट क्रिएशन से बनेंगे। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी बच्चे को अपना बर्थ याद हो, किसी ने आपको कभी बताया कि उन्होंने बच्चे से पूछा है, 1.5 साल के बच्चे से, कि आप जब बॉर्न हो रहे थे आपको कोई फीलिंग है? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 8 to 10% ऑफ बेबीज रिमेंबर देयर बर्थ। They have told that it was coming out of a dark tunnel. It was a very bumpy road. It was as if somebody was doing swish and swoosh within to me, inside, outside. तो मेमोरी इससे प्रूव हुई, ऐसे नहीं प्रूव हुआ कुछ भी, साइंस ने प्रूव किया है, स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, और 2 साल में जब बच्चों से पूछा गया तो सिर्फ 1 to 2% रिमेंबर्ड। व्हाई? कनेक्शन लॉस्ट। और कोई बड़ी बात नहीं है। वी हैव बीन हियरिंग अबाउट टेलीपैथी, थॉट पावर कनेक्शन, तो ये तो होता ही है, आप फोन उठाते हैं आपको फोन उसी का आ जाता है। कैसे हुआ ये? जब किसी को थॉट आपने बाहर दी, उसने आपका फोन उठाया, आ गया उसका, अगर आपकी उतनी दूर बैठे बंदे से कनेक्शन हो सकता है तो ये थॉट आपकी यहाँ नहीं जाएगी। तो खाना भी जा रहा है, थॉट भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो उस टोटलिटी में आपने अपने आप को एक्सपीरियंस करना है। तो खाना क्या है, बनाना किसने है, खाने से पहले टोटल कितने मिनट हुए? 10 बार पानी पिया, 6 बार खाया, 20-20 सेकेंड, 5 मिनट भी नहीं होते दिन के, ऐसे ही निकल जाते हैं इधर से उधर चलते हुए, फोन के ऊपर व्हाट्सएप देखते हुए ही निकल जाते हैं 2-3 घंटे। सबसे पहली चीज़ है, जब हम खाना खाते हैं ना, we should see why we have been gifted with such a huge set of teeth. Chew every bite. Chew every bite. Enjoy the food so that it gets completely absorbed. जब खाना खाते हो तो रंगों के साथ खाना खाओ ना, कलरफुल फूड होगा, एक कलरफुल सैलेड होगा, तो अच्छा खाने का मजा आएगा। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर आप दाल चावल खा रहे हो, 5 मिनट से भी कम लगते हैं खत्म करने में, क्योंकि वो हम चबा नहीं रहे हैं ना, चम्मच लिया निगल लिया, चम्मच लिया निगल लिया, चम्मच लिया निगल लिया। अगर आप साथ में एक अच्छा सा सैलेड, क्रंची सा या स्प्राउटेड कुछ रखोगे, और याद रखो कि वो फिनिश भी करना है, यानी कि साइड में पड़ा तो 3-4 बाइट्स लेके बाकी छोड़ देना है। थिंक ऑफ इट इज गोइंग टू योर बेबी। तो जब आप दाल चावल भी खाओगे, साथ में सैलेड का खाओगे, आपके आराम से 20 मिनट लग जाएंगे, एंड दैट इज द आइडियल टाइम जब आपका खाना ब्रेन टू फूड कनेक्ट हो जाता है। सो ईट योर फूड वेरी वेरी स्लोली। और ये एक दिन में नहीं होगा कि मैं कहूँ और आपने खा लिया और आपने, क्योंकि ये इनबॉर्न हैबिट्स है ना, ये नहीं चेंज होगी। इसके लिए कुछ विजुअल क्यूज रखो अपने रूम में, अपनी टेबल मैट पे कुछ रखो जहाँ पे लिखा हो, ठीक है?
कुछ टेबल मैट ऐसा हो जिसमें लिखा हो कि आई हैव टू ईट स्लोली, कुछ स्माइली ऐसा बनाओ रूम में जहाँ आप खाना खाते हो कि आई हैव टू ईट स्लोली, क्योंकि ये कंडीशनिंग है ना माइंड की। कंडीशनिंग होगी तभी आप उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग में डालोगे अपने आप को। आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जब एक बच्चा ऑलरेडी हमारे पास ग्रो कर रहा हो और एक सेकेंड आपकी बॉडी में है तो फटाफट से इसका काम खत्म किया, उसका किया। Let's say not 100%, 90% है ना, 90% of the times you can say कि हाँ काम हो गया खत्म, now I'll eat my food in the peace. Food is what I am made up of and food is I'm going to supply. अगर वही आराम से, प्यार से और मन से और चबा चबा के नहीं गया तो हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करी है, nothing more than that. I'm very allergic. So my prime concern was when I got pregnant that my second child should not be as allergic as me and my first child. See, these are, yeah. See, when I told you about switching on and off of genes, I told you it is dependent upon a few factors, which is the home environment which we give to the child. And in the home environment comes diet, stress, and hormones. These three things. So, these are the only three things which are in our hands. To understand what all genes are responsible for each and every illness, and how can we prevent this disease from coming to our child, there are only two things to do. Give a healthy home environment, that's very, very important because we know that this period is the most formative period of your, most critical period of your baby's life. And secondly, what you can do is that one, you are giving a healthy home environment and you are following all those parameters of thought. That you are not thinking that my child will have or my child should not have. Why should it even come? Nobody has told us that this is a genetic problem. Nobody has told us. Science is not telling us, so why should I think? By thinking that we should not have it means at least you are putting a connection in the brain that yaar ho sakta hai. Yaar, my child should not have this. Matlab, andar se soch rahe ho sakta hai. It's as simple as that. That is right, take it easy. Try to use your thought, channelize your thought process in the things which are informating, normal, which are going to relax your mind, which are going to consciously connect to the goodness within you. Because it has to be connected to within you. First, you have to be feeling like that for you to transmit those feelings to your baby. We can't say, मैं उससे नाराज हो रही हूँ, but I am very loving to my baby. No. When you are getting angry at anybody, XYZ, then only anger is staying there in your mind. Those hormones are being secreted. It cannot be that baby के लिए तो मैं loving हूँ, मेरी thought baby के लिए तो loving है. ये भी एक एंगल है सोचने का. But मैं नाराज तो उधर हो रही थी. Hormones will be secreted by your brain. This is the wiring which is there in your brain, and this is what will get transmitted. So consciously you have to try to take things as they come. Have faith in nature. And this is in the next class when we talk about labor. This is how you have to tackle that labor also. Have faith in nature. And today I am sorry कि आपको यही पीना पड़ेगा, but next time मेरे को पता है I will not make it now. I'll just put on the movie also side by side till you have something to drink. You just see a movie because when I made this project, I wanted all the people to, I knew that when I call somebody, I will only have a handful. It's very difficult to go around and tell people to come because it's so important because हर बंदा अपने experience से आता है. You come because you know me, you have an interaction with me and you have that faith that you will be told right things. Her twin baby had a very big problem in the lung. It was one of the rarest diseases. The child was in the nursery for 3 months. Amazed at the positivity of that girl, and both the couple. One child was fine, it was about 1.5 kg when I delivered one, and the second was about 1.2. It is one of the rarest surgeries which was done in our hospital and managed there. It even came in the newspaper. And how much positivity that girl had. Then this project was not even made on a formal note because this is about a year. She just celebrated her sons. It was a daughter and a son. She had twins and it was after infertility. So we just used to talk. And of course, such a patient, if she comes, and she has been with me since 10 years. She was not conceiving, then we sent her to one doctor, then I sent her to Dr. Nalini, then she came back in the 3rd month, a very committed patient.
But what wonders, what miracles positivity can do is amazing. I still agree nature has a lot of role to play, but nurture also has a very important role to play. We have now seen this. There is just one little thing which I thought before we disperse I will share, because this is a new thing for me. It was new, and I don't know your name, dear. Chavi. And Chavi has also told that she did experience. This is known as a near life experience. So this is a very good concept. I should not now say it as a concept, because now it is proved. If you go on the net, you will have, this is Sarah Hinz, she's a psychologist who has actually researched on this. There are too many famous people, John Denver and Richard Dreyfuss, who's a very famous actor. He has shared this, so when people who are known, they share their story, it becomes more authentic. If the Prime Minister is going to say, Make in India is good, so Make in India is good. And we have to honor that because they have worked hard for that, whatever. So this was a very nice thing that he said, that many people have a feeling, they can see it in the form of dreams, in the form of light, in the form of thought crossing your mind, that whoever is going to come and join in their family, they have seen those faces before they actually conceived and before they actually gave birth to that child. So Richard Dreyfuss, he is a very famous actor. He got married, first marriage was broken. आम बात है, अब तो यहाँ भी आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो this is I'm talking about 20 years back. So then, and he was a alcohol and drug addict, which many of the famous actors are, because that is the life they are leading. So he was admitted for detoxification. उसको admit किया hospital में उस alcohol और substance abuse से करने के लिए. तो वो वहाँ पे लेटा हुआ था, and he suddenly felt कि उस एक very nice 2-year-old princess, kind of a girl, in a pink frock, very nice, round, beautiful eyes. She just came. उसको dream आया वो जब रात को सो रहा था. This was a dream. वो dream में उसने देखा कि वो उसके पास आई और उसको वो कहती है उठा के अपने पापा को. She says, Daddy, I want to come to you, but I can't come to you. You have to come to me. And he got up. That dream motivated him to leave his alcohol and substance. He got married again, and 2 years later, when he could see that same face at 2-year-old coming to him, and he was sitting on his sofa and she came to him. So that is the level of consciousness which people carry, what I'm trying to say. So अभी हम लोगों को कुछ feel, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ. तो मैं ये नहीं कह रही कि आई एम अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी कि मुझे ऐसी बहुत सारी लाइट्स और ये सब कुछ दिखा है. बट येस, व्हेन वी आर ग्राउंडेड, व्हेन वी आर सेंटर्ड, व्हेन वी हैव अ सेक्रेट माइंड, व्हेन वी हैव प्योर फीलिंग्स फॉर एवरीबडी अराउंड, irrespective of what feelings they have for us, that is the time when such thoughts come and reside within your mind. See, before conception, and this is the studies which we are seeing. Near birth experience, there are 3 experiences, by the way. One is a near birth experience, one is a near life experience, and one is a near death experience. They have a lot of value, and now medical science is very beautifully accepting it because they have case studies to prove it. Similarly, John Denver का भी ऐसा ही case था. Before that child, they had to adopt a child. See, it was not even कि उनकी फैमिली में आ रहा था, वो अडॉप्टेड चाइल्ड का भी उन्होंने जिससे उसकी लाइफ में आना था, उसको वो भी फीलिंग आई. सो दीज एक्सपीरियंस हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड दे कैन चेंज आवर वर्ल्ड. व्हाई वी फील वी हैव टू डू एवरीथिंग फॉर आवर चिल्ड्रन. आई एम टेलिंग यू, दे आर कमिंग विद देयर फुल डेस्टिनी. दे विल चेंज योर लाइफ. You are not going to change your life, change their life. They will come and make everything possible for them to be as comfortable for you. So that is important when we understand, because आजकल कहते हैं प्लान करेंगे, पहले बाकी प्लान कर ले, मतलब सब कुछ प्लान हो जाएगा ना, फिर प्लान करेंगे. वो आके आपकी प्लानिंग खुद कर लेगा. इतना इम्पोर्टेंस है. There are a few virtues and a few powers which our soul has.
So there is one very important power which we need today, and that is the power to withdraw. This is about the power to withdraw. This page covers up a wonderful story of a cheerful little girl, Jenny, who so eagerly wanted to have a pearl necklace for herself. As Jenny got home, she peeped in her piggy bank and got 17 pennies. After dinner, she did more than her usual tasks so that she may collect the maximum amount for getting that necklace. Moreover, on her birthday, Jenny's grandma gave her some money, and at last she collected enough money to buy that pearl necklace which she wanted to have. Jenny had a very loving and caring daddy, and every night when she was ready for bed, he would read her a beautiful story. One night when he finished the story, he asked for the pearl necklace. But she denied, saying that she will never hesitate in sharing anything enough with her father, but it will not be possible for her to share that necklace which she had finally bought after so much of effort. Few days later, following his usual routine, Jenny's dad came in to read her another story. That night, finally, she handed over that necklace to her daddy. Tears were rolling down her eyes as Jenny's kind daddy took out a blue velvet case that had in it a genuine necklace of pearls for his daughter, exactly the similar kind. He handed over the same to Jenny. He had them all the time, and he was just waiting for her to give up the unnecessary stuff so he could give her the genuine treasure. So that is the beauty of life. We don't know what is waiting for us. We are just clinging on to so many things, but that power to withdraw from things, we just keep holding them. And this is what we want, that first we learn, and with us, let our child learn. We may take time to wire it in our brain, because our brain has already lost many important connections. But our baby can wire it and use it later on. After this, there are moral is, the power to withdraw is the ability to detach yourself, disengage from anything in life, restoring the calm and peace within yourself. If we lose, we feel peaceless. That is something which is not right, which we want to change. To withdraw in this way always allows us to aspire for something better in life and observe the scene with a wider perspective. So this is what these small little lessons you have to do every day for your child. And see how beautiful, we will also evolve emotionally, no? So this is actually a chance to evolve emotionally, your own personality, your own goodness, because it is all there. All of us are made with that goodness. We have all those virtues. It's just that we've not been using them every day, so वो पीछे हो गए हैं, उनको आगे लेके आना है. इसके बाद ऐसे ही एक एक्टिविटी फॉर द फैमिली है. फिर है फील द पावर एंड रिपीट विद योर बेबी, आई एम स्पेशल. Together we are blessed with all the powers, and we will enjoy each moment of life. Together we are not influenced or disturbed by the temporary things which will come and go in our life. We are embodiments of the power to withdraw. So this is the way, this I thought I should make something like this, because सुन के आगे क्या करना है, ये रोज करेंगे, बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भी वो करेगा. ऐसे सीखता जाएगा, अभी भी सुनेगा, बाहर आके भी सुनेगा, तो पक्की हो जाएगी कनेक्शन. फिर यूज ही होगा, लूज नहीं होगा. ठीक है, 2 minutes we'll just sit. थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दो, एंड देन वी विल जस्ट मूव. एंड थोड़ा सा हमारा टाइम एक्सीड हुआ, बट मे बी आवर बेबी वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर, सो ही मेड अस गिव मोर टाइम. ओके, इफ यू वांट यू कैन close your eyes. But if you want, you can also keep them open. Whatever you feel is more comfortable. Opening your eyes and channelizing your thoughts, if you can practice that, that is going to let you be connected daily, every moment. Sit in a comfortable position. आओ कुछ क्षण हम अपने साथ बैठे.
the being, the tiny point of light shining in the center of the forehead, the conscient energy and within me is another tiny point of light shining. मेरे भीतर एक नई लाइफ चमकती हुई ज्योति की तरह अपनी पावर्स, अपनी प्योरिटी रेडिएट कर रही है. What is the purpose of our life? God, the divine, the supreme energy, वो परम शक्ति ने मुझे उस नई लाइफ का क्रिएटर बनाया है. I am the special instrument which God is using to create the beautiful life within my shining womb. शुभकामनाएं, अच्छे विचारों, सद्गुणों से भरपूर मैं अपनी उस नई नन्ही सी जान को बहुत प्यार से पालती हूँ. I nurture my baby. We nurture our baby with good wishes, with virtues, with values. I welcome you, my baby. मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ. मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ. Thank you for choosing me as your mother. Thank you for choosing me as your father. Feeling yourself enveloped with the divine energy, the light shining over your head. God is blessing you and the tiny life within you, filling you and the tiny life within you with powers, with values, with virtues. Everybody will just get up with this consciousness and store this knowledge and use this wisdom to create the best for themselves and their baby.